Good evening, everyone. Forum to Enjoy English Language and R.S. Mulle Dharampet Arts and Commerce College welcome you to this BCom Semester 1 English online lecture series. Friends, we have been dealing with the prose units, the poetry unit, and now we have started the writing skill unit. We have already completed email writing and speech writing, and today we are going to see how views and opinions need to be expressed. Yes, nowadays views and opinions are very, very important. And you should learn how to express your views and opinions. And to deal with views and opinions, so today, this lesson or this writing skill will be dealt by me. I am Dr. Manjushri Sardesh Pandey, President of Field and Head of the Department at RS Mundle Dharampet Arts and Commerce College. So let us begin with views and opinions. Let me share my screen. Views and opinions. This is Unit 4, Lesson 3. In the examination, this question will be of 5 marks and you need to write in about 100 words. You have to express your views and opinions. Now, let us see whether views and opinions are important. What do you think, children? Are views and important? Do you think views and opinions are important? Yes. We should have our own views and opinions. Yes, we may differ. The whole class might be saying one thing and we might be saying something else, but that is your view, that is your opinion. And we have our views and opinions based on so many things. So many times it happens that if you're alone, you feel that you are wrong and you don't share your views and opinions. But we should always get into this habit of sharing our views and opinions, because we come to know so many things. Only when we share our views, we come to know what the other person, what the perception of the other person is, what his view and opinion is, and why has he formed that view and opinion. Yes, there are many reasons because of which we form our views and opinions. Now, we'll deal with that. Yes. Now, when do you need to give your views and opinions? In the first place, can you tell me that when do you need to give your views and opinions? Yes, many a times we need to give our views and opinions. In academic purposes, yes, whenever you are studying something, you need to give your opinion. Whatever you have learned, whatever has gone through before, on the basis of that, you form your reasoning, you form your opinion. And maybe in history, maybe in literature, if it is a poem and the poet, you are reading the poem and your friend says that, yes, the interpretation of this poem seems to be like this. You can say, in my view, or this is my opinion, that the interpretation might be like this. So the views and opinions may differ. And we'll come to it. We'll talk about it, that why views and opinions are different. Yes, हमारे व्यूज, हमारे ओपिनियन, हमारा दृष्टिकोण क्यों अलग होता है. हम काफी बार हम बाकी हमारे दोस्तों से, बाकी हमारे सहकर्मियों से हमारे विचार अलग होंगे. क्यों हमारे व्यूज अलग होंगे, क्यों ओपिनियंस अलग होंगे? क्योंकि हम जिस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं, शायद सामने वाले उस चीज को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं. सो इसीलिए हर व्यक्ति का व्यू और ओपिनियन अलग होता है. क्यों उनका व्यू और ओपिनियन अलग होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले तो आपको अपने के व्यूज देना पड़ता है. क्या जिंदगी में हमें अपने व्यूज और ओपिनियंस काफी बार, काफी जगह देने होते हैं. वेयर डू वी नीड टू गिव आवर व्यूज एंड ओपिनियंस?
I told you in academic purposes, just now we discussed about academic purposes, that in your studies, whatever you study, you come across and you have to think about so many concepts which are being taught to you, which you have learned already, and then based on those you form your opinion. And when you are interpreting, when you are, so you might have a different opinion. Okay, so in academics you have a different, you might have a different opinion, you have different views and opinions. Then personal, at home also, in the, maybe when you are talking with your family members, you might have a different opinion, your sister might have a different opinion, you might have a different opinion. घर में भी हमारे व्यूज और ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं. आपके मम्मी की राय कुछ अलग होगी, आपकी राय कुछ अलग होगी, क्योंकि उनका उस चीज को देखने का नजरिया अलग है और आपका नजरिया अलग है. क्यों है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. लेकिन हर व्यक्ति का घर में भी ओपिनियन अलग हो सकता है. एंड देन when you are in your office also, in your workplace also, you might have a different opinion. तो आपको वहां भी सलाह देना पड़ता है, एकेडमिक्स में सलाह देना पड़ता है, घर में सलाह देना पड़ता है, एडवाइस देना पड़ता है. वो हमारे व्यूज और ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं कि हम क्या सलाह देते हैं. सो व्हाई डू यू गिव योर ओपिनियन? आप आपकी राय क्यों बताते हैं? व्हाई डू यू गिव योर ओपिनियन? To justify your point of view or to convince the reader. If you want to convince the reader or speaker, whoever is in front of you, you have your point of view and you want to justify it because you don't agree with the person in front of you. काफी बार हम दूसरे लोगों से कुछ हटके सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं. जरूरी नहीं है कि उनके विचार और हमारे विचार मेल खाते हो. तो इसका मतलब हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, या जो भी चीजें वो बोल रहे हैं उससे हमारा सिर्फ कुछ अलग सोच, हम अलग तरीके से सोच रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण अलग है. इज इट इंपॉर्टेंट टू गिव योर व्यूज? तो आपको ऐसे लगता है क्या कि हमें अपने व्यूज देना चाहिए? पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था कि बड़े लोग जब बोलते हैं तो बड़े लोग काफी मैच्योर्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, इसीलिए छोटे, ऐसे कहा जाता था कि छोटे बच्चों ने उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे अपने जो भी हमारे व्यूज है, हमारा दृष्टिकोण है, बच्चे चुप रहते थे. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. आजकल सब लोगों को अलग अलग एक्सपोजर है. बच्चे भी आजकल खुलकर मम्मी पापा से बात करते हैं तो वो भी खुलकर कह सकते हैं कि मम्मी मुझे तो लगता है ये ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है. सो हम अलग अलग, हमारे मम्मी पापा के विचारों से हमारे विचार अलग हो सकते हैं. और आजकल हमारे मम्मी पापा भी इन विचारों का स्वागत करते हैं. अगर बच्चों के विचार अलग भी हैं तो उनके विचारों का स्वागत होता है, क्योंकि उनके लाइफ को, या उन्होंने आज जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके व्यूज एंड ओपिनियंस, दे आर बेस्ड ऑन द सराउंडिंग, दे आर बेस्ड ऑन the environment in which they live, they are based on how they have been groomed. So all these things go into making your views and opinions. अगर हम अपने विचार नहीं प्रस्तुत करेंगे तो काफी बार ऐसे होगा, what will happen if you don't express your views? Many a times if you don't express your views, you will be misunderstood. Yes, and many a times it will happen that if you don't express your views, you will have to work against your wishes. एंड मे बी कुछ दिनों बाद, शायद अगर आप आपके मन के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो शायद आपके ऑफिस में आपके बॉस बोल सकते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया. शायद अगर आप ऐसा बोलते तो मैं भी सोचता, और आपके विचार से, अभी आपने जो आपके विचार प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से आप जो कह रही हैं वो सच है. तो देखिए, आपने बोला ही नहीं कुछ, आपने आपके विचार एक्सप्रेस ही नहीं किए, तो सामने वाले को समझेगा कैसे? इसीलिए हमारे मन में जो भी हमारे विचार हैं, हमें दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं या हमारे विचार अलग हैं तो हम चुप रहें. नहीं, आजकल की दुनिया में आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं कि अपने मन की चीजें बोलिए. अगर आपका कुछ हटके कहना भी है तो बेझिझक एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहन माँ बाप भी देते हैं. हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज? हमने अपने विचार किस तरीके से रखने चाहिए?
हमें पता है कि हम जो कह रहे हैं वो करेक्ट है, सामने वाले से अलग है, हटके हैं, फिर भी हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि हम भाई आप गलत हो। ये दिखाने का भी या कहने का तरीके भी बहुत हैं, बट यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ पोलाइट वे। Yes, I'm afraid. I beg to differ. There are many other ways of expressions. We'll be taking how to express your opinions. I'll be telling you how to express your opinions, how to say, how, even if you want to differ, you can differ. You can say that very politely, so that the person first of all would be in the readiness to listen to whatever you are saying. Otherwise, if there are ego clashes, if nobody listens to each other's views, then there won't be any solution. Then there won't be any, you won't be able to come to a proper conclusion if the views don't match. So there would be many problems if the views don't match. And therefore, you have to amicably listen to each other. You should be straightforward, yes, because somebody should not, what you say, throttle your whatever you are saying, but that person also should respect your views. Everybody should respect each other's views, though they are different. Now, why views and opinions are different? Let me give you an example. As far as English is concerned, as we all are English learners and teachers, we can take an example from English. For example, if I ask you, which season do you like? So many children might say that yes, they like, in India, if you ask, which season do you like? So now it is winters, and most of the people in India, they like winters. Why? Because in India, winters are pleasant. So when you say, yes, in your opinion, which season is the best season? So maybe Indian people might say that, yes, winter is the best season. You enjoy all fruits and the weather is so pleasant. And like there are so many things because of which you can say that you like winter. You like to be cozy in the warm clothes, and it's not what you say freezing cold as it is in uh, the what you say northern hemisphere, or as it is in UK and US. But if you go there, if you ask people in UK and US that yes, which season do you like, or which, so they might say that yes, they don't like winter at all. Their winter is said to be death. Yes. Why? Because it is freezing cold there is no sign. Because it is freezing cold, you won't see any sign of life outside. Everybody is sitting inside. The human beings are inside, the animals are hibernating, and the trees are barren. There are no leaves on the trees. The insects are, if there are no leaves on the trees, there won't be any birds visiting the trees, there won't be insects, and therefore if there is no sign of life uh, anywhere, and therefore winter seems to be death. Yes, there is a white sheet lying on nature. So there, everybody there, if you ask people which season do you like, they might not say winter, and they'll say summer, because summers are beautiful over there. And they will say yes, we like summers because in summers there are beautiful flowers on the trees there, and they there it is always so cold that they are waiting for the summers, they are waiting for the sun to come up. They hardly see sun all the year round, and therefore they're very happy when they see the sun. So there they like summers. So then, which is the best season? Is winter good or bad, or is summer good or bad? In India, if you ask people how is summer, they might say summers are horrible. In summer, it is scorching hot, and nobody will like summers here in India. So that doesn't mean that winter is bad or summer is bad. So why somebody has the opinion that winter is good? Why? Because he's staying in this part of the world, and therefore in India they have good and pleasant winters, and therefore they enjoy winters, and therefore they like winters. But in UK, US, and countries, in the Western countries, people they like summers. So now do you understand why views and opinions are different? No, I am not saying that this person is right and this person is wrong. Yes, in this case, nobody is right and nobody is wrong. It is the geographical location because of which you differ in your opinion. So
people might differ in their views and opinions due to so many reasons. Just now I told you. So they might differ because of the geographical location. There is variation in the geographical location. So their view of looking at different seasons, different things are different. They might have different cuisines. Again, so we'll talk about cuisines also. So everybody, has different views and opinions because of so many reasons. Just now I told you about geographical locations. Due to educational background also, maybe people might have different opinion. A person who is an engineer, he might have a different way of looking at things. A person who has studied psychology might have a different view of looking at things. A person who is a person from literature, he might have a different way of looking at things. So people from different backgrounds have different ways of looking at things. So this is why views and opinions differ. So it is educational background, it is the cultural background. Maybe something which is there in your culture might not be there in other culture. So that doesn't mean that they are wrong and you are right, or you are wrong and they are right. No, it is because of the difference in culture. But you have a way of looking at things, and you might say that this is right according to your culture. So this is your view, this is your opinion. So did you understand? आपको समझ में आया? हर व्यक्ति का व्यू, हर व्यक्ति का ओपिनियन क्यों अलग होता है? क्योंकि सबसे पहले तो वो कहाँ रहते हैं. मैंने जो एग्जाम्पल बताया विंटर और समर का, कि अगर भारत में है तो हमें विंटर अच्छा लगता है, अगर हम यूके यूएस में है तो हमें समर अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वहां तो लोग धूप के लिए तरस जाते हैं, वहां पे उन्हें बिल्कुल विंटर पसंद नहीं है. विंटर में बहुत ठंड होती है, वहां पे विंटर किसी को पसंद नहीं है, लोग वहां पर समर को पसंद करते हैं. और हमारे यहाँ हम विंटर को पसंद करते हैं, हम समर बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि समर में तो बहुत धूप होती है, हम बाहर भी नहीं निकल, नागपुर जैसे शहर में तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंटर अच्छा है या समर अच्छा है. ये हमारा, क्योंकि हम इस वर्ल्ड के इस पार्ट में रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि विंटर अच्छा है. और यूके यूएस वाले वर्ल्ड के उस पार्ट में रहते हैं, तो उनके लिए समर अच्छा है. तो इसका मतलब हर व्यक्ति का हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है. उसकी वजह भी मैंने अभी बताई कि काफी अलग अलग वजह होती है. इसीलिए हम जब डिबेट करते हैं किसी चीज के ऊपर, हम डिबेट करते हैं, तो डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि ये चीज राइट है और ये चीज रॉन्ग है. डिबेट हम क्यों करते हैं? तो जो भी मसला है उसको हर एंगल से हमें देखना चाहिए. इफ देयर इज अ बिल विच इज फ्लोटेड इन द पार्लियामेंट, when you are deciding whether this bill should be passed or not, you have to examine it from different angles. You have to ask, you have to have a debate, and people express their opinions. Why? And people coming from different backgrounds have their own views and opinions. तो हर व्यक्ति के लिए, हर लोग, सारे लोगों का दृष्टिकोण जानने के बाद हम उस चीज को पास करते हैं, हम उस बिल को पास करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि व्यूज एंड ओपिनियंस माइट डिफर. सो रीजंस भी बताए मैंने. किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है. कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बिल्कुल इलिटरेट, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बात करता है, तो दोनों के नजरिए में फर्क होगा. जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका शायद प्रैक्टिकल अनुभव हो, तो उसका एक चीज को देखने का नजरिया अलग है. जो पढ़ा लिखा है उसने थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा उसके पास है, तो शायद उसका दृष्टिकोण कुछ अलग हो. तो ये these are the different views and opinions. These are the reasons why there are different views and opinions. इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन का अनुभव अलग अलग है. Everybody has experienced life in a different way. So he based on his experiences he will have his views and opinions. Isn't it? समझ में आया आपको? Okay. Now हाउ टू राइट योर व्यूज एंड ओपिनियंस. हमें अपने व्यूज और ओपिनियंस कैसे लिखने हैं? परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. अब देखिए, व्यूज एंड ओपिनियंस के लिए हम बड़े एसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है. हमें एक
थीम को लेकर लिखना है, और इसीलिए हमें सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है जो शायद 100 वर्ड्स तक सीमित हो। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को हमें कैसा लिखना चाहिए? हाउ टू राइट योर व्यूज एंड ओपिनियंस। द पैराग्राफ शुड हैव यूनिटी ऑफ थीम built around a single idea or the topic sentence. Means unity of theme. हम आगे जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे। हर पैराग्राफ, जैसे हम अगर किसी टेलीविजन पे लिखते हैं, या हम टेलीविजन के हम बचपन में आप लोगों ने लिखा होगा द यूजेस ऑफ टेलीविजन, और यू कैन से द बून्स एंड बेन्स ऑफ टेलीविजन। सो हम दोनों एस्पेक्ट्स लिखते, हम ऐसे में दोनों तरीके से लिखते हैं, पहले उसके एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, और फिर बाद में कंक्लूजन। ओके, सो वी हैव साइंस, हम तो साइंस के एसेस काफी लिख चुके हैं। सो science, whether science is boon or bane. So you write, you have some paragraphs wherein you write the positive side of science, and then you come to the negative side. So for every aspect you have one paragraph. हर एस्पेक्ट के बारे में आप एक एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो हर पैराग्राफ का एक मुद्दा होता है, एक थीम होती है, एक पॉइंट होता है, उसको आप इलेबोरेट करते हो। उसके बाद यू मूव ऑन टू द डिफरेंट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में आप दूसरा मुद्दा लेते हो और फिर उसके बारे में लिखते हो। देन यू राइट द सेकंड पैराग्राफ। in this way you write one paragraph after the other, but in every paragraph what you say, the point is different. Every point is highlighted and explained. Take one point, explain it, then you move on to the next paragraph, take another point, explain it, then you move on to the third, and then in this way you write your essays. Okay, but here we have asked you to write your views and opinions only in one paragraph, because we are going to deal with only one theme. That is for sure. You don't have to write 3-4 paragraphs, because you don't have to, because we will be giving you only one, we'll be talking about only one idea, or we'll be talking about one topic, and on that you have to, because otherwise it will go on elongating. There will be so many other views and opinions. We want you to express your views and opinions, but as this question carries only 5 marks, we want you to write only one paragraph. In exams like IELTS also, they ask you to write views and opinions. But yes, so if you learn here how to write your views and opinions, you will be benefited when you appear for exams like IELTS. Okay, so now let us come to our paragraph again. So how to write the paragraph? So if it is one paragraph which you are writing, how to write your views and opinions, you have to see that there is a theme there, and you have to, just now I told you, take the topic sentence, take the theme, and you write down your points, and you cover the paragraph. We will be taking one by one. I'll be telling you how to it. So first of all, there should be only one thought. There should be only one theme in that one paragraph. And then the next thing is there should be coherence. If you have written on that one theme, if you have written 10 sentences, all the 10, one, they should come logically one after the other. One point should come logically after the other. They should be in logical sequence. Okay, so why this point is coming after this? So there should be some logical reasoning, and so it is according to the logical progression of thought. So in this way the sentences are arranged. जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में एक मूल पहले थीम रहती है, एक बेसिक थीम है, एक विचार है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो उस विचार को लिखने के लिए हम हैफेजर्डली हम सारे मुद्दे एक साथ तो नहीं लिखेंगे, तो हम पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्रम से लिखेंगे, और उसके बाद क्रम भी हम कैसा निश्चित करते हैं, तो कि कैसे हमारे विचार हैं, विचारों का एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, उस रीजनिंग के हिसाब से हम पॉइंट्स को अरेंज करते हैं। Then use your words, use your own words. हमें अपने विचार लिखना है, हमें अपने शब्द लिखने हैं, हमें अपना दृष्टिकोण लिखना है, हमें अपने इमोशंस और फीलिंग्स लिखने हैं, दूसरे के नहीं, हमें अपने। अगर हमारा विचार पूछा गया है, हमारा दृष्टिकोण पूछा गया है, हमारा मत पूछा गया है, तो हमें
अपने शब्दों में अपने फीलिंग्स को व्यक्त करना आना चाहिए. सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू विथ एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स टू मेक योर आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग. हमें अगर हमारा दृष्टिकोण, हमारा विचार हमें प्रस्तुत करना है तो उसके लिए काफी बार हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं. एग्जाम्पल्स को देखकर हम और प्रूफ कर सकते हैं कि हमने जो कहा है वो सही है. तो उसको सही साबित करने के लिए हमें कुछ उदाहरण भी देने पड़ेंगे. वी नीड टू गिव सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव आवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू मेक आवर आर्ग्यूमेंट्स कन्विंसिंग. अगर हम सिर्फ ऐसा लगेगा कि सिर्फ अगर मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो ये विचार है, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे परिस्थिति में इस व्यक्ति ने भी यही कहा है और यही सही दृष्टिकोण है, सही मायने में ऐसा ही होना चाहिए. सो that means you are giving some examples to support your argument. Okay. Now we will take one small, we'll see how a paragraph is written. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि इज टेलीविजन एन इफेक्टिव टूल फॉर स्टिम्युलेटिंग इमेजिनेशन. अभी देखिए, टेलीविजन के ऊपर हम बड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ना. हमने इतना बड़ा ऐसे नहीं पूछा है, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे. सिर्फ किसी एक पॉइंट को लेकर हम आपका विचार जानना चाहते हैं कि आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या सोचते हैं. तो आपका विचार जानने के लिए, क्योंकि दिस इज द 21st century, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अदरवाइज यू लैग बिहाइंड. अगर आपको आगे जाके नौकरी करनी है, आगे आपको बड़े बड़े ओहदों पर काम करना है, आपको आपके विचार प्रस्तुत करना आना ही चाहिए. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज बिकॉज यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस in your, what you say, whenever, if you are doing a job or whatever work you are doing, you have to take decisions, you have to have your own viewpoint, otherwise you won't go ahead in life. लेकिन अभी मैंने कहा सीखने के लिए हमें पहले एक मुद्दे से शुरू करना है. ऐसे हम एक मुद्दे पर अगर हम अपना व्यू दे सकते हैं तो ऐसे आगे जाकर हम काफी मुद्दों पर विचार कर सकते हैं. एंड देन यू कैन हैव एन एसे. इन एन एसे यू हैव मेनी पैराग्राफ्स एंड देन दैट मेनी पैराग्राफ्स मीन्स मेनी पॉइंट्स. सो फॉर एवरी पैराग्राफ यू कैन हैव अ पॉइंट एंड देन यू कैन इलैबोरेट दैट पॉइंट. अभी हम एक पॉइंट को पहले देखते हैं. जैसे मैंने कहा, टेलीविजन के ऊपर भी काफी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक मुद्दा उठाया है कि टेलीविजन एन इफेक्टिव टूल फॉर स्टिम्युलेटिंग इमेजिनेशन. कि इमेजिनेशन मतलब क्या है? हमारी कल्पना शक्ति. हमारी कल्पना शक्ति के लिए टेलीविजन एक अच्छा साधन है क्या? इज इट अ गुड टूल? इज टेलीविजन इफेक्टिव असरदार टूल है क्या टेलीविजन, जिससे हमारा इमेजिनेशन स्टिम्युलेट हो, जिससे हमारी विचार करने की शक्ति, ये इमेजिनेशन तो कल्पना शक्ति है, तो हमारी कल्पना शक्ति को चालना मिलने के लिए टेलीविजन क्या योग्य टूल है? देखते हैं आपका क्या मानना है. ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहते हैं. व्हाट डू यू थिंक? Is television an effective tool for stimulating imagination? You can differ. It's not necessary that you read this and agree to whatever I am saying. You can differ. आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है. टेलीविजन से हमारा इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति, इसको चालना मिलती है क्या? तो आइए हम ये पहले पढ़ते हैं. तो इसके पढ़ने से हम जान जाएंगे कि इस व्यक्ति को क्या कहना है. इस पैराग्राफ में either see, you can say yes and you can say no. Okay, and both of them have to give reasonings to support the yes and no. अगर आपको जब व्यू और ओपिनियन पूछा जाता है तो उसमें सही या गलत नहीं होता है, उसमें वो आपका विचार है, वो सही या गलत नहीं होता है. दैट इज योर व्यू. बट आप अगर कहते हैं कि आपका ये व्यू है तो क्यों, उसको सपोर्ट करना आपको आना चाहिए. ठीक है. एक सिंपल सी चीज है कि हम जब डिसीजन लेते हैं या हमारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं उनको भी जब हम व्यक्त करते हैं, सो वी शुड नो व्हाई वी आर सेइंग यस एंड व्हाई वी आर सेइंग नो. फॉर एग्जांपल, अ सिंपल थिंग लाइक वेदर यू लाइक कॉफी और नॉट. आपको कॉफी पसंद है या नहीं?
तो यस राइट है और नो रॉन्ग है, या नो राइट है और यस रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है. इट इज, इफ यू से यस, यू हैव टू गिव, यू हैव टू से व्हाई यस, व्हाई डू यू लाइक कॉफी. इफ यू आर सेइंग नो, okay, then why don't you like coffee? So there are reasons. You have your opinion on that. Okay, you have your likes and dislikes, you have you form your opinions on so many things, so you have to express, you have to give the reason, then only you can support your answer. तो हमें अपना आंसर देने के लिए हमारा विचार ऐसा क्यों है उसको सपोर्ट कर, सिर्फ हमारा मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ ऐसा हम नहीं कह सकते, हमको रीजन देना जरूरी है. तो इसीलिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है, मतलब साधारणतः 10 वाक्यों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है. 10-15 वाक्यों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करना है. तो आइए हम पढ़ते हैं ये. In addition to making viewers lose touch with society, in addition to making मतलब in addition to making viewers मतलब दर्शकों को टेलीविजन क्या करता है, it makes them lose touch with society, समाज से उनका, क्योंकि हम समाज से टच में नहीं रहते ना, हम आमने सामने नहीं है. टेलीविजन में जब हम देखते हैं तो हम वर्चुअली देखते हैं, आमने सामने देखते हैं क्या, नहीं देखते. तो ये क्योंकि ये सच नहीं है, हम टेलीविजन के माध्यम से किसी को देख रहे हैं, यह आभासी, वर्चुअल है, आभासी है, सही में वह व्यक्ति वहां है क्या, नहीं. सो दिस इज नॉट रियल. ओके, सो इन एडिशन टू मेक व्यूअर्स लूज टच विद सोसाइटी, तो टेलीविजन क्या करता है, सोसाइटी से लोगों का टच कम करता है या बिल्कुल उसको गायब करता है. उसके बाद टेलीविजन हैज negative effects on viewers' imagination. Now, what type of effects does television have on viewers' imagination? Let us see that. See, it has a negative effect on viewers' imagination. The person who has written this is saying, before the days of television, people were entertained by exciting radio shows. तो आपके ज़माने में तो टेलीविजन पहले से हैं, लेकिन हमारे ज़माने में टेलीविजन, हम जब छोटे थे तो हमारे ज़माने में हम टेलीविजन नहीं थे, तो हम रेडियो सुनते थे. आज भी अगर आप जब रेडियो सुनते हो तो रेडियो में जो भी होता है तो उसको हम इमेजिन अपने तरीके से करते हैं. तो बिफोर द डेज ऑफ टेलीविजन पीपल वर एंटरटेन्ड बाय एक्साइटिंग रेडियो शोज. रेडियो शोज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से टेलीविजन पे जो प्रस्तुति होती थी वो ऐसे प्रस्तुति होती थी कि जिससे वो जो भी कुछ कहा जा रहा है हमारे आंखों के सामने एकदम उसका चित्र हम उसको चित्र को अपने सामने देख सकते थे. The listener was required to pay careful attention to the story. अब जो लिसनर है, जब रेडियो पर अगर हमें कोई बात सुननी है तो हमें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे. टेलीविजन पे कैसा होता है, टेलीविजन पे तो हम देख सकते हैं, तो लेकिन रेडियो पर हमें बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली उसको सुनना पड़ता है, क्योंकि इफ ऑल द डिटेल्स वर टू बी कॉम्प्रीहेंडेड मीन्स समझने के लिए, अगर हमें किसी डिटेल को समझना है तो हमें स्टोरी को सुनना पड़ेगा. बेटर येट, while listening to the stories, listeners would form their own images of the action. और सुनते सुनते, बेटर येट, while listening to the stories, ये स्टोरीज को सुनते सुनते लिसनर जो है, जो सुनने वाले हैं, जो हमारे श्रोता है, तो ये श्रोता जो है ये अपने दिमाग में कुछ कल्पना करते हैं, जो भी सुन रहे हैं उसकी वह कल्पना भी करते जाते. दे फॉर्म देयर ओन इमेजेस ऑफ द एक्शन टेकिंग प्लेस. जो भी कुछ हो रहा है उसका अपने मन में वो चित्रीकरण करते हैं. When the broadcaster would give brief description of Martian spaceships invading Earth. When the broadcaster, जो रेडियो पर हमें बता रहा है मार्शियन, मार्स से जो स्पेसशिप्स जो मार्स से आ रही है, इस स्पेसशिप के बाद अगर हमें वह ब्रीफ कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कुछ वर्णन कर रहा है, तो उस ब्रॉडकास्टर, वो टेलीविजन से जो हमें बताया जा रहा है मार्स से स्पेसशिप जो आई हुई है उसके बारे में जो वर्णन किया जा रहा है, तो जैसे जैसे रेडियो पर उसका वर्णन ब्रॉडकास्टर बताते जाते हैं, वैसे ही सुनने वाले जो
श्रोतागण है वो अपने मन में उसका चित्रीकरण करते जाते हैं. दे हैव देयर ओन इमेजिनेशन. तो जैसे ये मार्स से आई हुई स्पेसशिप जो है उसका अगर वर्णन करना है तो शायद जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे लोग अपने अपने दिमाग में कुछ अलग अलग चित्रीकरण कर रहे हैं. किसी के दिमाग में है कि स्पेसशिप ऐसी होगी, किसी के दिमाग में है कि स्पेसशिप ऐसी होगी. ये जो मार्स से जो स्पेसशिप आई हुई है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पर जो स्पेसशिप आई हुई है ये स्पेसशिप कुछ सबके दिमाग में अलग अलग उसका रूप है. इन कॉन्ट्रास्ट अब उसके उल्टा क्या होता है टेलीविजन पर. इन द टेलीविजन वर्जन ऑफ वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, अगर हम टेलीविजन पर हम वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड से अगर स्पेसशिप आई हुई है तो हम देख सकते हैं स्पेसशिप कैसे है. मैं भी टेलीविजन पे जो स्पेसशिप देख रही हूँ, मेरा पड़ोसी भी वो स्पेसशिप वैसे ही देख रहा है. तो इसका मतलब वो स्पेसशिप जो है उसका जो दृष्टिकोण, उसका जो इमेजिनेशन है, उसका जो कल्पना जो हम कर रहे हैं स्पेसशिप कैसे हो सकती है, तो सबकी एक जैसे होगी क्योंकि हमें टेलीविजन पे वो दिखाई जा रही है. तो सबकी कल्पना शक्ति उसी ओर दौड़ेगी, है ना. तो so it will not stir the imagination at all. किसी का imagination, it will not stir the imagination. किसी की कल्पना शक्ति को चालना ही नहीं मिलेगी क्योंकि हमें दिख रहा है. अगर हमें रेडीमेड कुछ सामने दिख रहा है तो हम अपनी कल्पना शक्ति क्यों लगाएंगे. जब हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो ही हम कल्पना शक्ति का उपयोग करेंगे. रेडियो पर हमें दिख रहा है क्या कि स्पेसशिप कैसी है, नहीं, सिर्फ उसका वर्णन हो रहा है, इसीलिए हम उसको अपनी कल्पना शक्ति से उसको तैयार कर रहे हैं. लेकिन टेलीविजन में ऐसा नहीं होता. टेलीविजन में उसको दिखाया जाता है तो हमारे सामने रेडीमेड उसका चित्रीकरण है, तो हम उसी अंदाज से उसको देखेंगे. हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग ही नहीं करेंगे. सो it will not stir the imagination at all, for everyone can clearly see the action taking place. टेलीविजन पे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कैसे हो रहा है, अलग अलग वर्ल्ड से जो आर्मीज आई है, अलग अलग व्हीकल्स में जो आर्मीज जो आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, उनमें वॉर कैसे हो रहा है, ये सब हमारे सामने दिखाया जा रहा है. तो इसीलिए हमें अपनी कल्पना शक्ति का यूज हम करने की जरूरत ही नहीं. ऑल व्यूअर्स, जो भी देखने वाले हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, all see the same spaceship with the same features. सारे उस स्पेसशिप को देखते हैं with the same features. So each aspect is clearly defined. हर चीज को अच्छे से दिखाया जाता है, हम हर तरीके से उसको देख सकते हैं, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं उसी तरीके से बाकी लोग भी देख रहे हैं. तो and therefore no one will imagine anything different from what is seen. इसीलिए सारे लोग एक तरीके से सोचेंगे, कोई भी हटके नहीं सोचेगा. Thus television cannot be considered an effective tool for stimulating the imagination. Thus इसीलिए टेलीविजन से कोई कल्पना शक्ति नहीं बढ़ेगी, किसी कल्पना शक्ति को बढ़ने का या उसको एनहांस होने का हमें चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब रेडीमेड दिखता ही है, मिलता ही हमें अपने दिमाग को लगाने की जरूरत ही नहीं. इसीलिए इमेजिनेशन, इसीलिए ये जो आंसर है हमारा, जो ओपिनियन है, आइदर वो फर्स्ट आता है या एंड में आता है. तो द टॉपिक सेंटेंस कम्स आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ और एट द एंड. सो हियर after discussing the details ki why television is not an effective tool for stimulating imagination, the answer is given. Why? The reason is given. There are so many things why this is one aspect of television which we have taken. Television has so many negative and positive things, but we have decided to discuss on one thing, and that is imagination. So we have to talk about just imagination in this paragraph, and therefore we are saying that yes, television cannot stimulate imagination. लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कहे कि टेलीविजन कैन स्टिमुलेट इमेजिनेशन. तो आपको जो कहता है कि टेलीविजन से इमेजिनेशन स्टिमुलेट होगा, वह भी ऐसा पैराग्राफ बना सकता है कि क्यों मुझे ऐसे लगता है कि इमेजिनेशन बढ़ेगा टेलीविजन से. आप उसके भी पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो इसका मतलब कोई विचार राइट और रॉन्ग नहीं होता, हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं उसको हमें प्रस्तुत करना है.
समझ में आया? तो ये जो 10 सेंटेंसेस है हमने कैसे लिखे, देखिए कि क्यों हमने सिर्फ इमेजिनेशन को लेकर ये लिखा हुआ है कि जो दर्शक है उनका जो इमेजिनेशन है वो टेलीविजन को देखकर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उनको स्पेस, अगर यहाँ पे हमने उदाहरण भी दिया हुआ है, हमने कहा ना हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है. सो हियर वी हैव cited an example to prove our point of view that yes, television is not an effective tool for stimulating imagination. Why? Because you can see everything in front of you. But in case of radio, what happens when you are listening to something on radio? You don't have anything in front of you. You have to imagine things, and therefore it enhances and it stimulates your imagination. समझ में है? Okay, now we move ahead. Now, already शुरुआत में हमने देखा था कि हमें steps, what are the steps to write a paragraph expressing your views and opinions. सबसे पहले अगर हमें टॉपिक नहीं दिया गया है तो हमें अगर कुछ अपना, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, मुझे किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देना है, तो मुझे आई हैव टू थिंक अबाउट अ टॉपिक, देन आई टू सपोर्ट whatever I am saying, I have to gather facts. पहले facts को जमा करो, नहीं तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि whatever you are saying, you have to say it forcefully. You have to support it with facts. You have to cite examples to emphasize your point. Okay, put them. Then what you have to do? Take one point. एक ही point को हमें लेना है, उसके फिर एक हमने टॉपिक, एक थीम को लिया है, उस थीम से रिलेटेड हमें जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमें 5-10 पॉइंट्स लिखना है. और उसके बाद when you write those 5-10 ideas, that will be based on the theme. Then keep the topic, audience and purpose of the paragraph in mind. You have to see that what is the topic, then what is the audience, what type of an audience you have, and what is the purpose of writing that paragraph. And these are the things which you will keep in mind when you are writing the paragraph. हम किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं? हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं, तो उस तरीके से हमें उन्हें समझाना पड़ेगा. क्या हम बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं? क्या हम साइंटिस्ट लोगों के लिए लिख रहे हैं? क्या हम किस तरीके के लोगों के लिए लिख रहे हैं? क्योंकि उस तरीके से उन्हें समझाना पड़ेगा. रिमूव ऑल द इरेलीवेंट थिंग्स. एक बार सारे पॉइंट्स आ गए कि उसमें से जो नहीं किया, काफी बार तो हम जैसे जैसे दिमाग में आता है उस तरीके से लिखते जाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं ये इससे मैच नहीं कर रही, ये इस थीम में नहीं आ रहा है, तो उसे हम हटा देंगे. देन अरेंज द पॉइंट्स इन क्रोनोलॉजिकल, सीक्वेंशियल और लॉजिकल ऑर्डर. उसके बाद हमें हर पॉइंट को लॉजिकल ऑर्डर से लिखना है. हर चीज का क्रम होता है. कोई भी चीज जैसे अगर इवेंट्स होते हैं एक के बाद एक, उन्हें हमें उस तरीके से लिखना है. अगर एक इवेंट पहले हो रहा है तो उसे हमें पहले लिखना है, हम उसे बाद में नहीं लिख सकते. तो हमें एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है. जैसे अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें पतीला लेना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, है ना. उसके बाद गैस को ऑन करना पड़ेगा. अगर हम गैस को ऑन ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो लॉजिकली क्या पहले आना चाहिए, क्या बाद में आना चाहिए, इसका एक क्रम होता है. ओके, प्लेस द टॉपिक सेंटेंस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ. तो हमारा जो विषय है जिसके बारे में हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, पहले जो पॉइंट है उसको पहले लिखो और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते जाओ, या फिर पहले हम सारा एक्सप्लेनेशन करें और फिर कहें कि इन सारी चीजों से हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये ऐसा ऐसा है. तो एक तो पहले लिखो या फिर एंड में लिखो. डू नॉट डील विथ मोर देन वन मेन थीम इन योर पैराग्राफ. बहुत सारी थीम्स को एक पैराग्राफ में मत डालो, बहुत सारे विचारों को एक पैराग्राफ में मत डालो. एक थीम लो, उससे रिलेटेड पॉइंट्स लो, फिर हम दूसरे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अगर टेलीविजन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में दे रहे हैं तो पहले पॉजिटिव लिख लो, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव लिखो. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव सब हम एक साथ लिख रहे हैं. सो डू नॉट डील विथ मोर देन वन थीम इन योर पैराग्राफ. ऑल द पॉइंट शुड डील विद द मेन थीम. हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस थीम के बारे में बात कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स उसी तरफ बढ़ना चाहिए. Expand the points into complete sentences. Then whatever points you have made, you have to expand those points in complete sentences. Use connectives, pronouns and other reference words. हर sentence में variety होना चाहिए. एक जैसे sentences सब रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना. You have to write in a, what you say, every sentence should have
variety. So the length of the sentence may also vary. The words, the connectors can also vary. अलग अलग सिनोनिम्स यूज करके हम अलग अलग शब्दों को लिख सकते हैं. रिवाइज एंड मेक करेक्शंस वेरेवर नेसेसरी. पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद एक बार फिर से उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कौन सी चीजें अननेसेसरी उसको निकालना, अगर कुछ गलतियां हो गई तो उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है. सो दिस इज हाउ यू राइट अ paragraph. Okay, now again we'll take up another paragraph so that we will see whether we have done all these things. Okay, जैसे हमने इसके पहले जो ये पैराग्राफ लिया था, इसमें एक ही टॉपिक था, एक ही थीम थी. टेलीविजन एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमने टेलीविजन इमेजिनेशन बढ़ाता है कि नहीं, सिर्फ इस विषय पर बात की. सो दिस इज द थीम. ठीक है, एक ही थीम है और हम एक थीम को एक थीम के बारे में हम क्या चाहते, हम क्या कहते हैं, यस और नो, उसको प्रूव करने के लिए हमने 8-10 सेंटेंसेस लिखे हैं. नाउ योर व्यूज ऑन अभी हम और एक टॉपिक लेते हैं. एक और एक टॉपिक लेकर हम और एक पैराग्राफ लिखते हैं. हमारा व्यू और ओपिनियन हम लिख कर देखेंगे कि एक पैराग्राफ में हम इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर व्यूज ऑन ऑनलाइन एजुकेशन. Now, without looking here, or I'll just remove this, what are your views on online education? I'll give you 5 minutes to just write what are your views on online education. Just write points. I don't want big sentences. Just write points. What are your views and opinions on online education? जो भी आपके मन में आता है आप लिखो. मैं आपको 2 मिनट देती हूँ. I'll just check your live chat also, what you are writing. Yes, I'll just check your live chat also, what you are writing. Yes, yes children, write, please write. What do you think about online education? We are talking on online education. What are your opinions on online education? Please write. Yes children, write, please write. Yes, Ayush Bhatkulkar is saying it is freely accessible from anywhere. Very good. Milind Pathak has negative, he is writing negatively. He is saying it is pressure on eyes, online education. Yes, so some may have positive views and some may have negative views. जिनका negative view है उन्होंने एक negative अपना view लेकर एक paragraph लिखना है. आपको देखना है कि आपके सारे नेगेटिव व्यूज को लेकर आप उसका अपना ओपिनियन कैसे बनाते हो. आपको लिखना है आपका ओपिनियन, आपका मत. आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं है के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है. और जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है, उनको एक पैराग्राफ ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है के बारे में लिखना है. समा सिंह, प्रेशर ऑन आईज. यस. रेवती बोकाडे सिंह, लो कॉस्ट. यस, बट लो कॉस्ट मतलब क्या, वो तो आपको एक्सप्लेन करना है हर पॉइंट बाद में. आकांक्षा मानकरे सिंह, गुड लिसनिंग. सिमरनजीत कौर सिंह, लेस इंटरैक्टिव क्लासेस. विच आर लेस ऑनलाइन आर लेस इंटरैक्टिव क्लासेस. अभी हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें लेस इंटरैक्शन हो रहा है कि ज्यादा इंटरैक्शन हो रहा है. पर सही है कि जो आमने सामने जो इंटरैक्शन होता है वो अलग होता है. उसकी तुलना ये वर्चुअल इंटरैक्शन से नहीं की जा सकती. यस, नेटवर्क इशू है. यस, नेटवर्क इशू हो सकता है. तो इसी के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि नेटवर्क इशू के कारण काफी लोग प्रोग्राम या ये, लेकिन जहां नेटवर्क अच्छा है वहां हम जाकर वो प्रोग्राम को देख सकते हैं. नो इंटरैक्शन विद टीचर्स. देन सिमरनजीत कौर इज राइटिंग ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स. यस, सो आप प्रेशर ऑन आईज एंड नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में जो ज्यादा लिख रहे हैं. अब हम उसको देखते हैं कि इसका पैराग्राफ हम कैसा लिखेंगे. सो नाउ सी, एज आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट
you have to jot down the points. So whatever points come to your mind, first of all, you have to decide whether you are going to go with the positive aspect or with the negative. What are your views on online education? For example, if I say I am going to take a positive, my view is going to be a positive view on online education. So let me jot down the points. The first is flexibility of schedule. Whatever comes to my mind, I have written, and then we can make a paragraph. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल, मतलब हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हमें जब पढ़ना है तब पढ़ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्लास चल रहा है, कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें अभी टाइम नहीं है, तो वो थोड़ी देर बाद या रात को भी ये प्रोग्राम फिर से देख सकते हैं. सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल. दे कैन प्लान देयर ओन शेड्यूल, दे कैन हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम एनी टाइम ड्यू एज पर देयर कन्वीनियंस. देन लो कॉस्ट. अब ये कम खर्चे का होता है. क्यों? अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमें आने जाने का खर्चा लगेगा. कोई बस से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, तो उसका आने जाने का खर्चा. स्कूल यूनिफॉर्म पहनो. यहाँ पर घर में तो हमें कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है, है ना. हम घर में ऐसे ही अपने घर के कपड़ों में भी बैठ के देख सकते हैं. हमें आने जाने का खर्चा भी नहीं आएगा. सो देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर which is reduced, or which is totally, what you say here, it is not applicable if you are going to study online. ऑनलाइन के खर्चे अलग होते हैं, पर ये जो है, ये सारे जो खर्चे हैं जो हमें स्कूल, जो जहाँ पर स्कूल में जाना पड़ता है, वो स्कूल में यहाँ पर नहीं अब जाना पड़ेगा, तो हमें ये सारे खर्चे नहीं रहेंगे. अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन. रिसोर्सेज, अब देखिए, अगर हमें एक विषय को पढ़ना है तो उस विषय को लेकर, उस टॉपिक को लेकर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, काफी सारे ऑडियोज अवेलेबल होते हैं. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन वन टॉपिक विच, एंड यू कैन जस्ट मूव ऑन फ्रॉम. एक अलग अलग लेखकों के होते हैं, वैसे तो बुक्स भी होते हैं, लेकिन ये इजीली अवेलेबल होते हैं. अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम फास्ट यहाँ से वहाँ ब्राउज कर सकते हैं और उस विषय के बारे में जानकारी जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं. गो विथ योर पेस. गो विथ योर पेस मतलब हम अपनी स्पीड से जा सकते हैं. क्लास में कैसे टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रही है, उसी स्पीड से हमें भी फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पर हम पॉज कर सकते हैं बटन को, फिर से पीछे जाकर रिवाइंड कर देख सकते हैं. तो हम अपने पेस से, जब तक हमें एक चीज समझ में ना आए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. सो दिस इज इन आवर हैंड्स. आज हमें पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना है, कल टाइम नहीं है, परसों है टाइम, तो हम अपने पेस से, हम अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं. नो ज्योग्राफिकल लिमिट्स. हम यहाँ भी बैठकर पढ़ सकते हैं. कल अगर मुझे मुंबई जाना पड़े, मैं मुंबई से भी वो क्लास को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो उस चीज को समझ सकती हूँ. तो ज्योग्राफिकल लिमिट्स कोई नहीं है. सेम टॉपिक थ्रू डिफरेंट टीचर्स. यहाँ पर बैठ के मैं हार्वर्ड, यहाँ पर रह के मैं हार्वर्ड की टीचर से भी पढ़ सकती हूँ. अलग अलग एक्सपर्ट्स से मैं राय ले सकती हूँ, उनका उस सब्जेक्ट पर विचार जान सकती हूँ. सो दैट इज सेम टॉपिक थ्रू डिफरेंट टीचर्स. देन कंफर्टेबल environment. So I'm studying here, I'm studying at home, so that is a comfortable environment. Okay, I can, if I want to eat something, I can go and eat something. I can just take a round, come back, and then again resume. So this is comfortable environment. Then career advancement. Career advancement में हो, जैसे for example, I'm a working lady. I cannot attend classes. I have, due to so many reasons, I have to work. I have to take up a job. So if I have to take up a job, now with online education, I can just come home and at night I can study whatever I want. तो मेरा नुकसान पढ़ाई का नहीं होगा. या फिर काफी बार करियर को एडवांस करने के लिए, करियर में प्रमोशंस के लिए आपको काफी सारे क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, लेकिन ये क्वालिफिकेशंस अगर आप नौकरी करते साथ तो नहीं कर पाओगे. तो इसलिए उसके लिए भी हमें रात को हम अलग से टाइम निकाल सकते हैं और एडिशनल क्वालिफिकेशंस को हासिल कर सकते हैं. सो दिस इज बेनिफिशियल एज फार एज करियर एडवांसमेंट इज ऑल्सो कंसर्न. सो यू कैन गेट प्रमोशंस, you can think about career advancements if there is the facility of online education. Now we move ahead. So now we have these 8 points. Now let us see how we can make a paragraph of these, or based on these 8 points. Now let us see. See, I have made this. So you have to write this much only, 10, 12, or at the most 15 sentences you can write.
So let us see how to proceed. See how I have written. Online education has lot of benefits. So in the first sentence only, I have made it clear that I am going to speak positive about it. I am going to speak about the benefits. So this is my view which I am giving. We can select the course. Now what are the benefits? So I have said that online education has a lot of benefits. Now what are the benefits? I am going to explain further. We can select the course and module of our choice. हम अपना कोर्स, ऑनलाइन के क्या बेनिफिट है, फायदे हैं, तो हम अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, हम अपना मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्टडी एट आवर ओन कन्वीनियंस. हम अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर आवर ओन शेड्यूल. हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं. हमें मंडे को पढ़ना है, ट्यूसडे को नहीं, हमें मंडे को ही पूरा कंप्लीट कर लेना है, ये भी हम कर सकते हैं. तो ये हमारे हाथ में है. सो वी कैन प्रिपेयर आवर ओन शेड्यूल. डिसाइड द टाइम वी वांट टू स्टडी. हमें अपना टाइम भी हम डिसाइड कर सकते हैं, किस टाइम पे हमें पढ़ना है. वी कैन स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम. हम अपने घर से, जरूरी नहीं है कि हम किसी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े, हम अपने घर के कंफर्ट से भी पढ़ सकते हैं. जो एनवायरनमेंट हमारे लिए कंफर्टेबल है, सुटेबल है, हम उस एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं. काफी लोगों के यहाँ घर में काफी लोग होते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं होती है, तो उनके लिए अगर एनवायरनमेंट सूटेबल है, वो कैफे में जाके पढ़ सकते हैं. सो यू नो, ऑनलाइन एजुकेशन यू कैन टेक एनीवेयर. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एजुकेशन विल ऑल्सो बी लेस. और ये जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हो रहा है, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन में कम होगा. शायद किसी काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री नहीं होते, उनके फीस देनी पड़ती है. लेकिन स्कूल में भी तो हमें, जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, वहां भी तो हमें फीस देनी पड़ती है. तो वो तो है, लेकिन बाकी के खर्चे जो हमने पहले डिस्कस किए, जो यूनिफॉर्म है, बस का खर्चा है, वो सारी चीजें कम हो जाती है. ओके. वी कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सिर्फ हमने ये भी कहा कि नागपुर से ही नहीं, तो हम मुंबई से में जाके भी उसी कोर्स को पढ़ सकते हैं. और कहीं भी अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम जहां भी जा रहे हैं वहां से हम अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं. वी कैन चूज द कोर्स, द यूनिवर्सिटी, द टीचर एंड द स्टडी मटेरियल. हमें किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, एक ही कोर्स है, लेकिन हमें उस कोर्स को किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं. हमारे स्कूल में तो जो टीचर है उन्हीं से हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें चॉइस है. इतनी सारी टीचर्स है, इतने सारे मॉड्यूल्स है, इतने सारे कोर्सेज हैं. तो अगर हमें जो कोर्स पढ़ना है, हमारे हाथ में है सिलेक्ट करना. हमें जो चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन रिवाइज एंड गो थ्रू द मटीरियल. हम उसी मटेरियल को बार बार पढ़ सकते हैं. एंड इवन द एक्सप्लेनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम. जो भी एक्सप्लेनेशन है, अगर जो अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर आपके समझ में ना आए तो आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं. इट इज एन एक्सीलेंट मीन्स टू एडवांस आवर करियर ऑब्जेक्टिव्स. तो इसके बारे में भी हमने बात की कि अगर हमारा करियर ऑब्जेक्टिव है, हमें अगर प्रमोशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन हासिल करना है, तो उसको भी हम कर सकते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड मीन्स ऑफ to advance our career objectives and go ahead in life. Then we can study several things simultaneously. यहाँ पर हम एक चीज सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को दूसरी चीज भी पढ़ सकते हैं. ऑनलाइन तो हम साइमल्टेनियसली काफी सारी चीजें कर सकते हैं. वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. स्कूल में तो एक तरीके का असेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के, क्योंकि अलग अलग लोगों से, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत लोगों से हो रहा है, ऑनलाइन है, तो हमारा असेसमेंट भी काफी अलग तरीके से हम करवा सकते हैं. देयर आर सो मेनी कन्वीनियंट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑनलाइन. इसकी भी हमने बात की कि काफी सारे हमारे पास एक ही सब्जेक्ट पर काफी सारे बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वीडियोज अवेलेबल हैं. तो हम सारे ऑडियोज को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. वी कैन ब्राउज सेवरल रिसोर्सेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, विषय में हम कितने रिसोर्सेज को यहाँ, कितने साइट्स पर जाकर हम अलग अलग मटेरियल जो अपलोडेड है उसको हम पढ़ सकते हैं. एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. इन माय ओपिनियन, अब देखो एंड में हमने अपना ओपिनियन दिया हुआ है कि इन माय ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन इज अ बून फॉर स्टूडेंट्स. ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये वरदान है, और एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल इन टुडे सिनेरियो. ये आज के सिनेरियो में, आज का जो हमारा
आज के दौर में ये बहुत उपयुक्त है. इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. सो विद दिस वी हैव सीन हाउ अ पैराग्राफ हैज बीन मेड. सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस. हमने लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है, अपना राय, अपने जो व्यूज एंड ओपिनियंस है उसको हम पॉइंट वाइज लिखते गए और उसका एक हमने पैराग्राफ बनाया और एंड में हमने अपना ओपिनियन भी कहा कि मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फायदेमंद है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द पैराग्राफ. ओके, सो नाउ वी मूव अहेड. ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन. अब ये एक तीसरा है, ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन. अब आप आपकी राय लिखिए कि ये आजकल हम फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी से, जोमेटो से, तो क्या ये अच्छी बात है? कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, बाहर की चीजें खाना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो अभी सुविधा है ये हमारे बहुत फायदे के लिए है. तो आप लिख सकते हैं, जैसे टेलीविजन के हमने नेगेटिव लिखा था, ठीक है, उसके बाद हमने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पॉजिटिव लिखा. ऑर्डरिंग फूड, अगेन you can talk about the negative sides of ordering food. What is your view? What do you think? Has ordering food online helped you, or what is it? Or people have become lazy, people don't cook food, people, you can write anything. So that is your view. You have to write one paragraph, either positive or negative. It is not that if you write negative you are going to lose marks. It is not like that. You have to just, whatever you are writing, you have to stick to that. बीच में, हाँ बीच में नहीं, you have to stick to your opinion, whatever you are saying, and complete that. So ordering food online, अगर आपके घर में नो वन टू कुक फूड, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, किसी के घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं है, उसके लिए बाहर से फूड ऑनलाइन करने की सुविधा अच्छी है. शॉर्टेज ऑफ टाइम, कभी कभी बहुत बार हमारे पास टाइम नहीं होता. अगर हमारे यहाँ मेड है खाना बनाने के लिए, कुक है, अगर कुक टाइम पर नहीं आई तो हमें लास्ट मोमेंट पे खाना बनाने के लिए समय नहीं है, तो हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं. हम जहाँ हमारे वर्क प्लेस में है, अगर कोई स्कूल में है तो उसको हम स्कूल में उसका फूड ऑर्डर कर सकते हैं. उसके वर्क, अगर मुझे कॉलेज जाना है और अगर मेरे पास खाना बनाने के लिए समय नहीं है तो मैं कॉलेज में फूड ऑर्डर कर सकती हूँ. एंजॉय वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल. काफी बार हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे दूसरी वैरायटी खाना है, शायद वो मुझे पकाना नहीं आता हो. अगर मैं साउथ इंडियन लेडी हूँ, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना नहीं आता, तो मुझे और अगर आज मुझे नॉर्थ इंडियन खाना है तो मैं आई कैन ऑर्डर नॉर्थ इंडियन फूड. सो इट इज, यू कैन एंजॉय वैरायटी ऑफ फूड. कोई कोई रेसिपीज ऐसी होती है कि जो बनाने में काफी वक्त लगता है, कोई कोई कॉम्प्लेक्स रेसिपीज होती है, तो वो अगर हम रेडीमेड, अगर हमें कोई लाकर देता है और वो भी घर में गर्मा गर्म, तो उसकी जैसी अच्छी चीज नहीं है. तो शायद मुझे वैरायटी खाने की आज इच्छा है, तो वैरायटी फूड के लिए भी हम फूड को ऑर्डर कर सकते हैं. लेस हैसल्स, तो अगर पार्टी है घर में तो लेस हैसल्स, ऑर्डर कर दो, फूड आ जाएगा. आपको के पूरे सामान की जरूरत को लाने की जरूरत नहीं है. सब्जी लाओ, फिर ये सारा सब्जी को काटो, बनाओ, इतने लोगों के लिए बनाओ, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो और फिर सब खाना बनाने के बाद सारा पूरा किचन साफ करो, बर्तन धो. सो it is a what you say, lot of hassles. So you can, if you order food, it will be less hassles. Then convenient for hostelites, patients, bachelors. जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें वैसे भी डब्बे की जरूरत होती है. सो नाउ दे हैव अ वैरायटी, आज इस होटल से मंगा सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव होने की वजह से काफी बार हमें फायदा भी होता है, सस्ता भी मिलता है. पेशेंट्स को तो शायद हॉस्पिटल्स में फूड मिल भी जाए, लेकिन पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी एक सुविधा हो गई है ऑनलाइन फूड की. एंड देन बैचलर्स, तो इनके बैचलर्स अगर कहीं फ्लैट में रह रहे हो, उनके जिनके घर में कोई नहीं है खाना बनाने के लिए, तो यहाँ भी दे कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन. सो दिस इज कन्वीनियंस ऑफ टाइम का कन्वीनियंस है इसमें. प्लेस, जहाँ भी हमें मंगाना है मंगवा सकते हैं. हॉस्पिटैलिटी, अगर हमें हॉस्पिटैलिटी की इच्छा है, किसी को कुछ खिलाना है, जब मन में आए तब वो उस चीज को हम खिला सकते हैं. सो दीज आर द positive aspects of ordering food online. So now after writing these points, पहले हमारे दिमाग में जो points है हमने लिख लिए, अब उन points को हमने expand किया. Okay.
नाउ लेट अस सी। नाउ ये सारे पॉइंट्स को लेकर मैंने ये पैराग्राफ बनाया है। ऑर्डरिंग ऑनलाइन फूड हैज ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री। ये अलग हटके बात है ना, आज रेवोल्यूशन हो गया है ना। तो क्रांति हो गई है फूड इंडस्ट्री में, एक अलग ही, जो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसी चीज हो गई है। वी कैन ईट वॉट एवर वी डिजायर। आज हमारे मन में जो आ गया कि आज मुझे ये खाना है, वॉट एवर वी डिजायर वी कैन ईट। एनी वैरायटी इज अवेलेबल ऑन आवर फिंगर टिप्स। वाई फिंगर टिप्स? एक मोबाइल का बटन दबाओ और आपका फूड हाजिर। So we can go through several variety of recipes at competitive prices. तो काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है, कंपटीशन है, उसके वजह से प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव हैं। सो नाउअडेज द क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल ऑनलाइन इज गुड। पहले हम कहते थे कि घर का खाना होता है, आज भी कहते हैं हम, लेकिन आज काफी जगह हमें जब हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें अच्छे हाइजीनिक फूड भी अवेलेबल हो सकता है। एज वी कैन ऑर्डर फ्रॉम द रेस्टोरेंट ऑफ आवर चॉइस। हमें जो जिस रेस्टोरेंट से चाहिए उस रेस्टोरेंट से हम फूड को मंगवा सकते हैं, वहां से मंगवा सकते हैं। वी एंजॉय द फूड इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। सो इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर, इफ यू जस्ट वांट टू लाई डाउन, इफ यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट एंड देन हैव फूड, अगर बाहर जाना है तो एक तैयारी करो, बाहर जाओ। सो एंड अगेन यू रिक्वायर, यू हैव टू कम्यूटेशन के भी पैसे लगते हैं, तो उससे अच्छा हम हमारे घर के कंफर्ट में खा सकते हैं। इट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ हैसल्स। तो वो हमने जो पॉइंट्स लिखे थे उनको हमने अभी ये पैराग्राफ में लिखा है। सो इट ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ हैसल्स। We do not need to commute to far off places, restaurants. दूर दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। No need to dress up. तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। If there is no one to cook at home, अगर घर में कोई खाना बनाने के लिए नहीं है तो we can order food from online. तो हम ऑनलाइन फूड कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर सिर्फ बच्चे हैं घर में, मम्मी नौकरी करती है, मम्मी को आने में लेट हो गया है, तो घर से बच्चे फूड ऑर्डर कर सकते हैं या मम्मी उनके लिए ऑर्डर कर सकती है। The online food ordering facility has made it convenient for students staying in the hostel or for the relatives of the patients in the hospital. तो ये जो ऑनलाइन फूड फैसिलिटी है, ये पेशेंट्स के लिए इसकी सुविधा हो गई है, और हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफी सुविधा हो गई है। इफ अ पर्सन इज सिक एट होम, इतना ही नहीं तो अगर एक मम्मी है, मम्मी भी अगर बीमार है घर में, तो और वो खाना नहीं बना सकती, तो इजीली हम उनके लिए फूड ऑर्डर कर सकते हैं, या वह अकेली है तो वह भी अपने लिए फूड मंगवा सकती है, और she can online order food. We can also order online food if we want to enjoy different varieties of food. हमारे घर में है बनाने के लिए लोग, ऐसा नहीं कि इसका हमें प्रॉब्लम है, लेकिन आज हमें वैरायटी खाने की इच्छा है, जो दिल में है वो खाने की इच्छा है, तो हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इफ वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी इन द ऑफिस, अगर हमें पार्टी करना है ऑफिस में, तो वहां पर हम उसका प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे मन में आया वैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफिस में, वर्क प्लेस में, और इवन एट होम, ऑनलाइन फूड सर्विस हैज बिकम कन्वीनियंट। नो नीड टू प्लान इन एडवांस, इन माई ओपिनियन। अब देखो, अब अपना ओपिनियन हमें देना है, इसलिए ये लाइन ऐसे लिखना जरूरी है कि इन माई ओपिनियन ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ फूड हैज मेड लाइफ कंफर्टेबल। तो इसके वजह से हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो गई। तो हमने अपना एक पॉइंट लिया और उसको बढ़ते बढ़ते हमने कैसे बढ़ाया, और हमने अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया कि क्यों ऑनलाइन फूड ये बेनिफिशियल है, और आज इसके आज क्या फायदे हैं। तो एक पैराग्राफ में हमने इसके फायदे लिखे। ओके, नाउ वी मूव अहेड। Some useful expressions for expressing your opinions. अभी आपको अगर आपके ओपिनियंस लिखना है, तो जैसे मैंने कहा इन माय ओपिनियन, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन राइट इन माय ओपिनियन और इन माय आईज, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नजरिए से, टू माय माइंड, मेरे मतलब मेरे मन से, देन एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा ख्याल है, ओके, स्पीकिंग पर्सनली, मैं ऐसा समझती हूँ, सो दिस इज माय ओपिनियन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, एज फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो ये ऐसा है, मेरे लिए मेरा मानना है, आई गेस दैट, मैं ऐसा, मेरी सोच है,
आई बेट, मैं तो बेट लगाती हूँ कि ये ऐसा है. आई गैदर दैट, मैं ये गैदर मतलब ये सारा एक सोच के मैं इस चीज पे पहुंची हूँ, ये मैं समझती हूँ. गैदर मीन्स ये मैं समझती हूँ कि इसका कारण यह है, ये मेरा मानना है. फिर माई व्यू, माई ओपिनियन, माई बिलीफ, मेरा विश्वास है. माई इंप्रेशन, माई कन्विक्शन इज दैट, आई होल्ड द व्यू दैट, मैं ये व्यू, आई होल्ड द व्यू, ये सारे एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं. इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, बिना, इट गोज विदाउट सेइंग मतलब ये है ही, ये ऐसा ही है, इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता. आई वुड से दैट, मैं ये ऐसा कहती हूँ कि. इट सीम्स टू बी, मुझे ऐसा लगता है. तो दीज आर द एक्सप्रेशंस. इट सीम्स टू मी, आई एम ऑफ द ओपिनियन. माई इंप्रेशन, आई एम अंडर द इंप्रेशन. फिर इट इज माई इंप्रेशन. सो ये सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस है जिसको आप आपके शब्दों में आप लिख सकते हैं. आई हैव द फीलिंग दैट, मुझे ऐसा लगता है. माई ओन फीलिंग ऑन द सब्जेक्ट इज दैट. ये दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस विच यू कैन यूज. आई हैव नो डाउट, मेरे दिमाग में बिल्कुल थोड़ा सा भी शक नहीं है, ये ऐसा ही है. देन आई एम श्योर, आई एम सर्टन. देन आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ. आई कंसिडर दिस, आई फाइंड, मैंने मेरी ये खोज है, मुझे मेरा विश्वास है, मेरा इमेजिनेशन, या मैं सोचती हूँ इसके वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस विच यू कैन यूज to put forward your view and opinion. So I hope you have understood, and how to write the paragraph also we have discussed in detail. If you have any doubt, you can ask. I'll give you 1 or 2 seconds. You can write and let me know. Otherwise, we can stop here. Yes, most of you have written your answers. So I'm happy that you are following. And I hope you have understood how to write your views and opinions. It was a very easy topic, but still, don't leave this. Get into the habit of writing your views. Okay? जो भी हमें आपको आपके मन में अलग अलग टॉपिक्स पे जो भी विचार आते हैं उनको लिखो. उनके बारे में जैसे भी आप लिखोगे, आपका व्यू आपको एक्सप्रेस करना आएगा, आपको प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आएगा. क्योंकि काफी बार हमको लगता है, लेकिन वॉट एवर वी फील वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड्स. सो यू शुड फाइंड प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर views and opinions. Okay, so with this we will stop here, and I hope you have enjoyed the lesson. Thank you very much. So meet you tomorrow with our grammar section. Okay, tomorrow we are going to start our grammar portion, and we have another expert in English of RTMNU with us, Dr. Shraddha Deshpande. So she will be taking grammar. So meet you at 5 p.m. Till then, bye bye and happy learning.